Everyone, this is CACS, Prajadani this side, and here we are with our video on ICAI case studies analysis, the 8 case studies that have been released by ICAI. Very good, very in-depth analysis that we have gained beautiful insights on, and we are sharing that with you. So yeah, let's begin. Before starting with that, if you are a student who have appeared for Group 1 CA final way back or year back, and now you are going to appear for group 2 and you're confused and scared regarding paper 6, do not worry about it. Watch the video that I have pinned there and join the Telegram channel. You will get the complete solution for that. We have created a beautiful solution for you. So yeah, going coming back to this, please do subscribe to see Spurs Rani, share it with your friends, and let's begin. देखो मैं आपको बता रहा हूँ, we have created an insight for you for the 8 case studies that have been released by ICI. So first of all, to begin with, see, this PDF is available on our Telegram channel. So do join Telegram and you will get everything there. So yeah, let's begin. So see, at first, we are going to cover the subject coverage that have been covered in the case study as presented by ICI. So in the case study 1, FR is not there. AFM, that is your SFM, डरो मत, SFM का ये AFM हो गया है, और ऑडिट का कोई एस्पेक्ट नहीं है, डीटी का एस्पेक्ट है, आपके लॉ का एस्पेक्ट है. तो देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रफली उन्होंने कवर किए. लेट्स कम बैक टू केस स्टडी 2. अगेन एएफएम का एस्पेक्ट है, यहाँ पे ऑडिट का क्वेश्चन था, डीटी का क्वेश्चन था, एंड अगेन लॉ का क्वेश्चन था. ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन है, क्या है, आगे हम और वो कवर करेंगे. ये सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट कवरेज जो है वो बता रहे हैं. थर्ड केस स्टडी ओनली डीटी एंड आईडीटी, बस खत्म. फोर्थ केस स्टडी ओनली डीटी एंड आईडीटी, एक लॉ का एक सिंपल सा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लॉ को कवर नहीं किया है, तो यहाँ पे भी डीटी एंड आईडीटी. फिफ्थ केस स्टडी में यहाँ पे एफआर, अगेन ऑडिट, आईडीटी, लॉ. देन सिक्स केस स्टडी अगेन एफआर, आईडीटी एंड लॉ. सेवन केस स्टडी डीटी, आईडीटी एंड लॉ. बार बार देखने नहीं आएगा, डीटी आईडीटी लॉ, डीटी आईडीटी लॉ. there's a reason, let me tell you. 8 case study FR DT IDT. So क्या समझ में आया यहाँ पे? The most important thing that the institute is going to focus on DT and IDT part. That is going to be very crucial for you in your IBS exam as well as the law part. As we can see in the probability, see, I know the sample size is very small, but these are released by ICAI. और जो आपका वहां पे पेपर रहेगा, that's gonna be based on somewhat on this. So that's why we can take insight from it, and that will help us to prepare for your actual exam. So yeah, यहाँ पे देखो FR की आपकी इतनी ज्यादा probability नहीं है, एएफएम की आपकी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑडिट की भी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं थी. टीटी आईडीटी लॉ, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपकी केस स्टडीज ये 3 सब्जेक्ट को 100% कवर करेगी. बाकी सब्जेक्ट आएंगे नहीं आएंगे, आ सकते हैं. देखो ऐसा ऐसा तो होगा कि सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे जरूर, बट इनके ज्यादा क्वेश्चंस में आने के चांसेस है. आप ये समझिए कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस है, ईटी आईडीटी एटलीस्ट आपके 3 क्वेश्चंस में आएगा, लॉ का एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस में आने की प्रोबेबिलिटी है. तो देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है, दैट वी कैन गेट द इनसाइट्स फ्रॉम दिस. सो या देखो, अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ what are the topics that are covered in those 8 case studies. बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पे इंगल्फ किया है. Before beginning with that, let's discuss the level of knowledge that the institute is expecting from you. So yeah, in FR they are generally expecting the overview. देखो मैंने यहाँ देखा है what insight what we have get, that basic questions आ रहे हैं स्मॉल इंडेक्स से. अगर कोई बड़े इंडेक्स से भी आ रहा है तो बेसिक सा एक ओवरव्यू क्वेश्चन आ रहा है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. एंड अगेन एएफएम बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी बेसिक क्वेश्चंस है, उसके लिए तो बिल्कुल ही सोचने की भी ज्यादा नीड नहीं है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, मैं आपको बताऊंगा आगे. बेसिक क्वेश्चंस कम फ्रॉम एएफएम एज फार एज those 8 case studies are concerned. Audit, inter, that is not your CA inter, the intermediate level of knowledge is expected from you. ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, बट हाँ ओवरव्यू से भी बात नहीं चलेगी. इंटरमीडिएट नॉलेज. देन डीटी द टेक्निकल, एकदम इन डेप्थ चाहिए बिल्कुल. एंड ट्रस्ट मी, डीटी आईडीटी इन डेप्थ रहना आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है. because good news इसलिए because they are in group 2 and anyways you are going to study from them, so this would be a great help for you in your IBS. So that is a very crucial and very important thing for you. Then law,
Being part of the SPOM, the self placed online module, it is quite a bit in your IBS. Professional level, a little more than inter, but less than technical. Professional level knowledge is expected in law, and we can discuss that further. In case study one, they have in AFM there are basic question about mutual fund and a basic question about debt security. Then when the interest rates rise, what will happen to debt fund, which is related to debt securities. Then again, no question for it. DT, TDS, taxation on mutual funds. न्यूली इंसर्टेड सेक्शन दैट इज सेक्शन 50 AA आपने पढ़ा होगा अभी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स क्वाइट अ थिंग्स इन डीटी इन केस स्टडी 1 एंड देन इन लॉ फेमा के रिपैट्रिएशन से सिंपल सा क्वेश्चन था बट ओवरव्यू लेना वहां पे जरूरी था तो आपने देखा किस तरीके से केस स्टडी 1 के क्वेश्चन थे केस स्टडी 2 अगेन स्टार्टअप फाइनेंसिंग बेसिक क्वेश्चन अबाउट बूटस्ट्रैपिंग to an audit a basic question about due diligence then again in DT in-depth question about ATIAC then again in-depth question about stop taxation and then angel tax so quite a few questions about your in-depth knowledge in DT that's a good thing actually if you trust me then in law merger and amalgamation a basic overview question of merger and amalgamation but a good question ठीक है थर्ड केस स्टडी पे आते हैं it was all about TDS, TDS, TDS. All around 4 MCQs were around TDS, 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 TDS. So देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अगर हम कैटेगरी बना रहे हैं इफ यू आर मेकिंग कैटेगरी फॉर IBS तो एक चीज तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैटेगरी A TDS एंड ITC बस अब ये समझ लो these two things are very important are going to be very important and I can assure you that these two things are going to appear in your IBS TDS and ITC are 100% going to be there in your IBS exam as far as the things I am looking at the case studies I am looking at and even जो हमारी case studies भी आने वाली है the case study book we are coming up with जो कि 50 to 60 केस स्टडीज रफली आपकी कवर करेगा तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टे ट्यून टू दैट बहुत जल्दी हमारी वो बुक आ जाएगी चलो उसके बाद आईडीटी में द आईटीसी रिवर्सल आरसीएम एंड एक ड्यूटी स्क्रिप्ट में मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन अभी जाके देखें हाँ और हम लोग इन केस स्टडीज को फर्दर केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे एंड वी विल अपलोड ऑन यूट्यूब एज वेल ताकि आप लोग को एक ओवरव्यू एक अच्छा नॉलेज उस चीज को लेकर समझ में आ जाए सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू उसके बाद नो क्वेश्चन फ्रॉम लॉ देन अगेन केस स्टडी 4 अगेन देखिए टीडीएस इनवॉइस एलिजिबल आईटीसी बिल ऑफ एंट्री आईटीसी देन बुक्स ऑफ अकाउंट बेसिक सा क्वेश्चन था एक फॉर्म का क्वेश्चन था एओजी कोड का तो काफी दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कंसीडर्ड अकाउंट्स सॉरी लॉ तो ठीक है इतना ठीक है समझ गए किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें देन अगेन यहां से होता है आपका एफआर शुरू इंडियस केस स्टडी 5 में आपका इंडियस 21 आया था ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी का बेसिक क्वेश्चन था बट हाँ ओवरव्यू नहीं रहेगा तो स्टूडेंट आप नहीं कर पाओगे तो उसके बाद ऑडिट में बेसिक क्वेश्चन आया था ऑडिट स्ट्रैटेजी के ऊपर देन अगेन आईडीटी में थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा था आईईसी के ऊपर देयर वाज अ गुड क्वेश्चन अबाउट ट्रायंगुलर ट्रेड इनवॉइसिंग एंड जीरो डेट सप्लाई द क्वेश्चन लेवल वाज वेरी गुड वहां पे अच्छे क्वेश्चन थे देन फॉरेन कंपनी का बेसिक सा क्वेश्चन था आपको उसके बाद केस स्टडी 6 में इंडेस 20 का एक ओवरव्यू क्वेश्चन था ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं था ओवरव्यू क्वेश्चन नहीं था सीधा फिर वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके काफी सारे क्वेश्चन थे आपके केस स्टडी 6 में एंड देन आपके यहाँ पे लॉ को भी उन्होंने अच्छा एम्फेसिस दिया था पावर ऑफ बोर्ड डिविडेंड मीटिंग्स ये सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया था देन केस स्टडी 7 में आपका इंडेस 41 द एग्रीकल्चर का इंडेस है वहां का एक बेसिक सा क्वेश्चन था ऑडिट में जो आप निमोनिक बनाते हैं दैट यू मेमोराइज जो रखते हैं ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वो चीज का आपका सीधा रटा रटा क्वेश्चन था एंड देन कॉफी अच्छा क्वेश्चन आया था कॉफी एंड टी बिजनेस का एंड उसमें आपका जो डिडक्शन मिलता है उसके ऊपर क्वेश्चन था डिवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स का क्वेश्चन था और जनरल टैक्स के क्वेश्चन थे आईआईटी में भी जनरल क्वेश्चन थे और रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन थे तो इसमें ज्यादा जनरल क्वेश्चंस को ज्यादा रखा गया था और यहाँ पे वापस से लॉ में मीटिंग्स ऑफ बोर्ड तो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आईपीएस के लिए उसके बाद इंडेस 115 का क्वेश्चन था केस स्टडी 8 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स का था थोड़ा सा अगर आपको वो उसका नॉलेज नहीं होगा तो डिफिकल्ट हो सकता है बट डोंट वरी ये आपने अगर अच्छा ओवरव्यू ले लिया दैट वुड बी इनफ फॉर यू उसके बाद यहाँ पे आईओएस एंड कंप्यूटेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आया था और उसी में यहाँ पे फिर आईडीटी में यहाँ पे कंपटीशन दिया वहां पे उसने एफओबी का दे दिया और आईजीएसटी और कस्टम्स का भी काफी सारा पार्ट इंस्टीट्यूट ने कवर किया है आईबीएस में
तो ये हमने देखा ओवरऑल किस तरीके से आपके लिए सारी चीजें फ्रेम हुई है इन 8 केस स्टडीज में। फर्दर सारी जो भी केस स्टडीज आएगी वी विल कवर इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अलॉन्ग विद दैट हमारी 50-60 केस स्टडीज जो आएंगी हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो एंड हमारे लेक्चर्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। देयर इज गोइंग टू बी अ रिवीजन बुक फॉर यू ऑफ कंप्लीट सीए फाइनल विच विल बी रेलेवेंट, और कैसे वो रेलेवेंट रहेगी बस उस चीज पे हमारे सब एनालिटिक्स लगे हुए हैं। So you don't need to worry about anything. We are working on so many things right now, and just you need to share this video with your friends. Subscribe to CA Spurs Durani, and if you have any further doubts, you can connect with me on Telegram. So bye bye. Take care and do not worry about IBS. Just focus on your other subjects right now. We are coming up with a very great solution for you. Bye bye. Take care. See you next time.